गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। के जमाल का तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम टेकिंग ज्योमेट्री फॉर सैनिक स्कूल क्लास 6 in math. As I have explained yesterday, angle and triangle, it comes only Sainik school, not in Navodaya Vidyalaya. So I am taking next in geometry, quadrilateral and circle. Before that, I have left one more point: complementary and supplementary angle. I am taking complementary angle if the addition of two angle equal to 90 degree, then it is complementary angle. And if the addition of two angle equal to 90 degree, then it is complementary angle. At the same time, supplementary angle. If the addition of two angle equal to 180 degree, then the angle is supplementary angle. Addition of two angle equal to 90 degree. Here addition of two angles equal to 180 degree, that is supplementary angle. Now I am taking quadrilateral. Yes, quadrilateral if the quadrilateral is formed by four non-collinear sides, four non-collinear, you can say line segment. This is quadrilateral, in which you will study parallelogram, quadrilateral the opposite sides are parallel. Opposite sides are
parallel. In the case of parallelogram, this way, this parallel this parallel this, ये इसके parallel है, ये इसके parallel है. Means you can say if A, B, C, D, then AB parallel DC का, and at the same time BC parallel AD. This is sign of parallel. You must know. So, in the case of parallelogram, the opposite sides equal at the same time. Diagonals bisect each other. जो डायगोनल्स है इसके, जो ये विकर्ण बोलते हैं हिंदी में, वो क्या करता है, डिवाइड करता है एक दूसरे को, एंड नॉट इक्वल. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट डिवाइड each other. Now we will take a rectangle. This is rectangle. Parallelogram. All opposite sides are equal. Firstly, in the case of parallelogram, opposite sides are equal. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. If ABCD, then AB equal DC का, and at the same time BC equal AD का. Opposites are parallelogram in which opposite sides are equal and all angles are 90 degree. Diagonals bisect each other. A square. In the case of a square, this is square, A, B, C, D. All sides are equal and all angles are 90 degree. All sides are equal. All angles are 90 degree. Diagonals, जो diagonals है, this bisect each other. Means all sides A, B, C, D, AB equal BC equal CD equal DA. और जितने भी एंगल्स हैं वो क्या है, 90 डिग्री. एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल 90 डिग्री.
here also in the same of rectangle. Now we will take rhombus. जिसको हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं और स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है और पैरेललोग्राम जो है क्या है, समानांतर चतुर्भुज। तो ये जो है रोहम्बस क्या है, समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज। In the case of this way, all sides are equal. The adjacent angles, adjacent angles, addition of adjacent angle equal 180। मीन्स अगर ए बी सी डी लेते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 180, एंगल डी प्लस एंगल ए 180। मीन्स एडजेसेंट एंगल, दिस इज मीन्स बगल का एंगल का एडिशन क्या होगा 180। एंड diagonals bisect each other. Now we will take trapezium. In the case of trapezium, one pair of sides are parallel. एक जो है मीन्स हेयर ए बी पैरेलल डी सी के या सी डी के। Now we will take polygon, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुभुज। बहुभुज, it is formed by 3 or more line segment, you can say। जो बहुभुज होता है पॉलीगॉन होता है। In the case of regular polygons, जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। एट द सेम टाइम्स एंगल्स आल्सो इक्वल। जैसे अगर मान लिया जाए ट्रायंगल लिया जाए तो जो 3 साइड्स होंगे वो ट्रायंगल कहलाएगा। जितने भी साइड्स हैं तीनों इक्वल और एंगल इक्वल। जो 3 साइड्स को क्या बोलेंगे, जो 3 साइड्स होंगे 3 साइड्स उसको ट्रायंगल बोलेंगे।
जो 4 साइड्स हैं उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, यू नो। अगर 5 हो गया तो पेंटागन। 6 साइड हो गए तो क्या हो गया? हेक्सागोन। 7 साइड्स हो गए तो क्या हुआ? हेप्टागोन। सिमिलरली 8 साइड्स हुए तो क्या हुआ? ऑक्टागोन। 9 साइड्स हुए तो नोनागोन। एंड 10 साइड्स हुआ तो डेकागोन. You must learn this. It will be given in the examination. Now we will take circle. So try to learn the technical points. You will be given. Circle, you know, this is circle, a fixed point से फिक्स पॉइंट एंड एक डिस्टेंस से अगर चारों ओर घुमाया जाए सर्कल फॉर्म होता है. जैसे ये पॉइंट में कहीं गाय की रस्सी को बांध लिया जाए, वो चारों ओर घूमती है, चरती है, ग्रेजिंग, तो क्या है? दैट इज सर्कल. मीन्स ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर. और यहां से ओ, दिस इज सेंटर. और अगर ओ ए ले, दिस इज रेडियस. अगर यहां इस साइड में बढ़ा दिया जाए बी, तो दैट इज ए बी इज डायमीटर. That means because OA equal OB, so जो डायमीटर है D, डायमीटर को हम इस तरह से लिखते हैं, डायमीटर D इक्वल टू R. This is R, this is D. You must know. This is diameter DR, D equal to R. At the same time अगर circumference लें, circumference is the boundary around चारों, means C equal to pi R. You know, you can also write this way. 2R को जगह pi D लिख सकते हैं, D, क्योंकि D equal to R. पाई क्या है? वेयर पाई इक्वल 22/7. अगर एरिया इसका निकाला जाए तो एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल. पाई आई हैव गिवन यू. दिस इज मस्ट लर्न द फॉर्मूला आल्सो. Now chord, if it is circle, अगर circumference पर दो पॉइंट को मिला लिया जाए, this is chord, AB chord. एंड अगर आर्क की बात करें तो इस तरह से, दिस इज आर्क, this is arc A B, this is arc. So अगर सेगमेंट की बात करें
if you are taking segment, then if you are given a circle, then if it is chord, then जो आर्क है, दिस आर्क, तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, छोटा आर्क है, और दिस इज, ये बड़ा आर्क है यहां से यहां तक, दिस इज, ये छोटा आर्क था, तो ये मेजर आर्क, दिस इज मेजर आर्क। तो जो ये दिस इज माइनर सेगमेंट, जो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में बना वो माइनर, व्हाट इज माइनर सेगमेंट। और बड़ा जो आर्क है, मेजर आर्क, और कॉर्ड के बीच में बना, दिस इज मेजर सेगमेंट। Now at the same time you can take sector. If it is circle or this is center, then two radii, दो रेडियाई और ए आर्क, सॉरी, ये दिस इज आर्क और ए, इसको हम बोलेंगे सेक्टर, माइनर सेक्टर, और दिस इज मेजर सेक्टर। दिस इज ये पूरा होल मेजर सेक्टर, और दिस इज माइनर सेक्टर। So try to study or see the points I have given. One more thing, I will give you, if this, अगर कोई पॉइंट से एक लाइन जो है जाती है बाहर से, और इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर को ड्रा किया जाए, तो इसको हम बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट, फिर से रिपीटिंग, रिवाइज, वो सेंटर है, सेंटर से अगर कोई भी लाइन जो ड्रा किया हुआ है सर्कल के बाहर से, तो उसको क्या बोलेंगे, टैंजेंट, टैंजेंट ऑफ द circle. So I have given all the every type of and all the points about quadrilateral. At the same time, circle. So this is tangent. One thing more, central angle. If it is circle, और कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, यहां मिला दो, और जो एंगल बना उसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। So try to study the points and concept and technical point I have given about quadrilateral and as well as circle, and
I will take the different type of question next day. Try to study and get concept and got benefit in this lockdown. अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अपने फ्रेंड सर्किल में अपने नेबर्स को शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो। और दूर दराज के बच्चे जो गांव में रहते हैं, जो समाज से पिछड़े हुए हैं, उनको जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा जो KJ का तेजस बना है वो उन्हीं बच्चों के लिए, स्पेशली जो गांव में रहते हैं और हमारे समाज से वंचित हैं, और इस चैनल्स के तहत वो भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकें और देश के लिए काम आ सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।